السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ کے گھروں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور کسی سے نہیں ڈرتے سوائے اللہ کے۔ ناظرین، میں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کی جد و جہد سے اور کاوشوں سے مسجد خواجہ محمود شمس آباد کو آباد کیے، اور ان تمام لوگوں کے لیے دعا گو ہوں جو اللہ کی رضا کے لیے اس مسجد کو آباد کرنے کے لیے کوئی خاموشی سے جد و جہد کیے، کوئی سامنے آ کر اپنے آپ کو گرفتاری پیش کر کے اپنی اور مختلف طریقے سے انہوں نے حکومت پر پریشر ڈال کر اتنا مجبور کر دیا کہ الحمدللہ وہ مسجد آج آباد ہو گئی۔ میں ان بھائیوں کے لیے جن میں نام لینا ضروری سمجھتا ہوں کہ جناب امجد اللہ خان صاحب، جناب مشتاق ملک صاحب، جناب کوثر محی الدین صاحب، جناب عثمان محمد خان اور راشد خان، جناب اشفاق خان، جناب عبداللہ سہیل صاحب، جناب اشفاق محمد خان کے علاوہ جناب مجیب اللہ شریف صاحب اور دیگر کئی احباب نے الحمدللہ اس مسجد کو آباد کرنے کے لیے بہت کوشش کی۔ اللہ کے فضل سے مسجد آباد ہو گئی۔ تمام ملت اسلامیہ کے غیور لوگوں کو ان تمام نے یہ ثابت کر دیا اللہ کے فضل سے کہ ہم الحمدللہ مسجد کے معاملے میں سب کی جد و جہد جو جس طرح سے الحمدللہ اپنے انداز میں، کوئی بات نہیں، کسی سے بھی کسی کا بھی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن الحمدللہ جنہوں نے بھی اس میں جس طرح سے اپنا حصہ نبھایا، میں ان تمام کا مشکور ہوں۔ اللہ کے فضل سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو بھی آباد رکھے جنہوں نے اللہ کے گھر کو آباد کیے۔ اور حضرات، بات چونکہ مسجد کو جس طرح سے شہید کیا گیا، مسجد کو وہاں کے مکینوں کو جس طرح سے مقفل کر کے ان کے مکانوں میں محروس کر کے ان کے موبائل چھین کر کے جس بربریت کے ساتھ، ایسا انداز سمجھ میں آ رہا تھا کہ صبح کے جب بات معلوم ہوئی تو یہ گویا کہ تلنگانہ اسٹیٹ نہیں بلکہ کوئی ایسا اسٹیٹ ہے جہاں پر فضائی طاقتوں کی حکومت ہے۔ ان لوگوں کو جو اس مسجد کی شہادت میں جو ذمہ دار ہے، ان خاطیوں کو گرفتار کرنے کے لیے اب تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کو فوری سسپینڈ کریں، ان لوگوں کے، اور ان جو پولیس والے جس طرح سے گھروں کے باہر سے ان کے دروازے بند کر دیے تھے، ان لوگوں کے خلاف بھی کارروائی کی جانی چاہیے۔ یہ بہت بڑا سانحہ ہوا ہے۔ حیدرآباد میں شاید پہلی مرتبہ اس طرح سے مسلمانوں کو ان کے گھروں کے اندر بند کر کے یہ مسجد کو شہید کیا گیا۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے میرے بھائیوں۔ تمام لوگوں نے جن لوگوں نے اخلاص کے ساتھ جو کام کیا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کیا الحمدللہ اللہ کے فضل سے۔ الحمدللہ میں بار بار ان لوگوں کے لیے یہی دعا کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا کہ
अल्लाह उनको हमेशा खुश रखे, उनके घरों में अल्लाह ताला खुशियाँ, उनके घरों को आबाद रखे अल्लाह ताला, उन्हें हर शर से, हर परेशानी से अल्लाह महफूज रखे। भाइयों, हमारे एक भाई जो कल मैं एक मैसेज दिया था जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब को कि आप इस मस्जिद को आबाद करने के लिए ख़ुद KCR साहब के पास जाएं, किसी एहतजाज की ज़रूरत नहीं, कोई केसेस किसी के ऊपर आपकी पार्टी के लोगों पे या किसी भी, यानी जो मुसलमान और हिंदू भाइयों ने भी उसमें हिस्सा लिया, उस प्रोटेस्ट में, उनको भी कोई परेशानी की नौबत नहीं आती। मैं जो मशवरा दिया था अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह, बहरहाल उसके साथ ही साथ मैं उनको ये मैसेज दिया था इससे पहले कि मैं उन भाई का जिन्होंने कल मुझे कॉल किया था, मैं मशकूर हूँ कि मेरी बात को पहुँचाने में अवाम तक उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ भाई रियाज साहब का, मीडिया फाइज़ोन के, अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैंने आज का जो आप तक ये मैसेज दिया था कि मैं आज बाद नमाज इशा मजलिस के उन दर्दमंद भाइयों को जिनको अल्लाह के दीन का दर्द है, अल्लाह के मसाजिद से मोहब्बत है, उनके लिए मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ। तो भाई रियाज साहब ने इसमें अल्लाह के फजल से मेरी उसमें मदद की, आप तक के मैसेज पहुँचाने के लिए मैं मशकूर हूँ। अल्लाह ताला उनकी भी हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला उनके चैनल को भी तरक्की अता फरमाए, और दीगर भाइयों का भी मशकूर हूँ जिन्होंने मेरे लिए वक्त का इंतज़ार किए, और सुबह से कई कॉल्स आ रहे थे कि उस्मान भाई क्या आप मजलिस ज्वाइन कर रहे हैं। उनको ख़ुद मालूम है क़ायद को कि मैं उनका किस तरह से मैं उनके साथ रहा हूँ। मेरी बात का कोई बुरा ना माने, वो भाई भी जिनके लिए मैं बात कर रहा हूँ, मैं कई मरतबा मजलिस के सदर साहब से गुजारिश किया कि मस्जिद चंदा साहब के लिए, भाई शमशाबाद की मस्जिद को शहीद जो किए, यानी ये गवर्नमेंट के इदारों की जानिब से शहीद हुई ये मस्जिद, मैं चूँकि आपके सामने खुलासा कर दूं, कई लोग यही तजस्सुस है कि उस्मान का कोई ज़ाती मामला है। मैं मेरे अब्दुर्रहमान इधर आओ बेटा, उधर से उस तरफ से आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे इस अब्दुर्रहमान के रब की कसम खा के बोल रहा हूँ, बैठो। अल्लाह जानता, कोई किसी से इख्तिलाफ नहीं है। मसाजिद के लिए जब वो मेरे घर में आए थे, बड़े भाई से मिले, बहुत बड़ा ये तवील दास्तान हो गई है हमारी, अल्लाह खैर फरमाए। तकरीबन 19 साल 20 साल हो गए हैं। तो मैं उनके साथ यही बात किया था कि गरीब मुसलमानों को टोली मस्जिद की ज़मीन पर आबाद कर दें। उन्होंने भी इस बात की हामी भरी थी कि ज़रूर मेरी बात का, और इसके अलावा साबिर नगर का मैदान और मस्जिद आसार शरीफ के आगे ऊपर जो क़ब्रस्तान है ख्वाजा वो शाह कुली बहादुर के उस क़ब्रस्तान में, और बड़ी मस्जिद कारवान के क़ब्रस्तान, अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम, मस्जिद शाह कुली बहादुर की खुली आराज़ी पर जो वक्फ़ आराज़ी है उस पे, और कारवान की मस्जिद, बड़ी मस्जिद में गरीब मुसलमानों को आबाद करने के लिए बात किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त बात भी मेरी माने थे, और अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरी इस बात का यासिर अरफात से भी आप तस्दीक कर सकते कि उन्होंने पैसे लाए थे मेरे पास इलेक्शन में, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके हाथों से पैसे बंटवा दिया था। उनके साथ अब्दुल अलीम जो चादरघाट के हैं, उन्होंने भी साथ थे। पूछिए
वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अगर गलत बयानी कर रहा हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मेरे लिए सबसे बदतरीन मेरी हालत कर दे। बात सिर्फ़ और सिर्फ वक्फ़ के जायदादों की और मसाजिद के ताल्लुक़ से थी। मस्जिद चंदा साहब के बारे में मैं बारहा जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब से कई बार कहता रहा कि मस्जिद को आबाद कर दीजिए, मस्जिद को। तो बात इतनी इख्तिलाफ इतना पैदा कर दिए कुछ लोग मेरा उनके दरमियान कि पैसों के लिए ना उनको भी पूछ लीजिए, ना मेरा उनका पैसों के लिए इख्तिलाफ रहा, ना किसी चीज़ के लिए इख्तिलाफ रहा, सिर्फ़ और सिर्फ इख्तिलाफ रहा। तो जो भी कोई किसी को अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बात नहीं हुई। लेकिन मस्जिद जो चंदा साहब मस्जिद है, कुतुब शाही मस्जिद है, देखिए भाई ये इसका गज़िट है, ये मेरे घर की नहीं है, आंध्र प्रदेश की ये गज़िट है। ये गज़िट में गज़िट नंबर 20A है, 1984 की ये गज़िट शाया हुई है, जिसमें आप ये देख सकते हैं, ये पढ़ सकते हैं, आप रिकॉर्ड कर लीजिए आप लोग। मैं तमाम भाइयों से गुजारिश कर रहा हूँ, मेरी ज़ात के लिए कुछ भी नहीं है। इसमें लिखा हुआ है अल्लाह के फजल से कि नेम ऑफ ताल्लुक और विलेज वार्ड नंबर 13 ब्लॉक नंबर 4 सब्जी मंडी टप्पा चबूतरा। नेम एंड सिचुएशन ऑफ वक्फ सुन्नी और शिया। फर्स्ट मस्जिद डिलैपिडेटेड, सेकंड ग्रेवयार्ड चंदा साहब, एडजेसेंट टू रोड एरिया 617.6 स्क्वायर यार्ड्स। नेचर एंड ऑब्जेक्ट ऑफ वक्फ प्रेयर एंड बरेल। भाई ये मस्जिद का ये गज़िट है। इसके बाद जो अहम चीज़ आपके गोशो गुजार करना है, मैं वो भाई का भी जो मेरे से अगर इख्तलाफ भी रखते हैं तो अल्लाह के लिए मैं उनसे, उनके वालिद मोहतरम मेरे लिए बहुत अजीज़ थे। देखिए ये देख सकते हैं, ये वक्फ का प्लान है, ये वक्फ का प्लान है, जिसमें देख सकते हैं खुला आप ये जो नज़र आ रही है मस्जिद है, ये जो क़िबला नुमा भी सारी चीज़ें हैं। और इसमें लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है मस्जिद मस्जिद मस्जिद। ये अनानियत नहीं है। ये आप के लिए, चूँकि सुबह से कई भाई मेरे लिए फ़ोन कर रहे थे कि मस्जिद कहाँ है, कैसी है। ये मस्जिद है, देखिए ये टप्पा चबूतरा लबे सड़क पर ये मस्जिद है। ये मेन रोड पे, सब्जी मंडी टप्पा चबूतरा रोड पे ये मस्जिद है। ये कब्रिस्तान के अंदर एक दीवार बची हुई है मेरे भाइयों। इस बात की भी तस्दीक कर ले सकते हैं, हमारे महल्ले में अभी तकरीबन 82-83 ईयर्स एज है। अमीर अली साहब जो मस्जिद मोहम्मदिया के ख़तीब भी रह चुके हैं, और उनके कहने के मुताबिक मैं इस मस्जिद के, देखिए मस्जिद ये दूसरा एंगल से है, ये मस्जिद के मीनार और इसकी छत भी देख चुका उस्मान। उनके कहने के मुताबिक ये मस्जिद है। मैं आपको वक्फ का गज़िट बताया, सर्वे कमिश्नर रिपोर्ट बताया। कभी इसमें इस तरह से झूले डाल के रखते थे, अब देखिए झूले नज़र आ रहे होंगे आपको। इसमें मैं बारहा कई मरतबा तवज्जो दिलाने के बावजूद जब बात नहीं मानी गई और इख्तिलाफात पैदा कर दिए गए, तो आखिरकार मैंने अल्लाह के फजल से ये रिट पिटीशन फाइल किया था हाई कोर्ट में। आप देख सकते, पढ़ सकते, ये रिट पिटीशन जो मैंने फाइल किया, जिसका नंबर है 25280 ऑफ 2009। इसके तहत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से पूरी तफसीलात इसमें है। मैं आपको व्हाट्सएप पे लगा दूंगा, फेसबुक पे लगा दूंगा। अल्लाह के फजल से यहाँ से इस मस्जिद से झूले हटाने के लिए मैंने
ایک کارپوریٹر صاحب کو نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، لوگ جانتے ہیں جن کے جھولے رکھے جاتے تھے کئی سال سے اس مسجد میں، اس کو میں نے ہائی کورٹ سے اللہ کے فضل سے ان جھولوں کو وہاں سے الحمدللہ ہائی کورٹ کے جسٹس آنریبل جسٹس انیل آر داوے چیف جسٹس، اور ان کے ساتھ جو ہے نا جسٹس سی وی ناگرجنا ریڈی صاحب کے اجلاس پہ یہ اللہ کے فضل سے کیس ہمارا داخل ہوا، اور اللہ کے فضل و کرم سے 2009 میں الحمدللہ نومبر 20th ڈے آف نومبر 2009 میں الحمدللہ میں نے کورٹ سے آرڈر لے کے، کیونکہ خالی نہیں کر رہے تھے جھولے وہاں سے مسجد اور قبرستان سے، تو وہ مسجد کی چھت گر گئی میرے بھائیوں، وہ مسجد کی چھت گر گئی۔ ایک ایسی تصویر ہے، چونکہ میں کسی کی دل آزاری نہیں کرتا، لیکن وہاں میں چونکہ اس کو ٹیگ کر دے، اس کو ایک ڈاٹ لگا دیا۔ یہ مسجد دیکھیے آپ، یہ مسجد کے اندر ایک دیوانہ آدمی برہانہ وہاں پر رہا کرتا۔ میں ان سے میری دشمنی نہیں ہے، اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میرے ہر چیز سے میں ہمیشہ کوشش کرتا رہا کہ بغیر کوئی تنازع کے مسجد حاصل ہو جائے، مسجد میں لوگ نماز پڑھ جائے، اگرچہ کہ یہ 617.6 اسکوائر یارڈ یہ زمین ہے، اس میں سے 100 گز پہ، چونکہ وہ صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پر قبور بنا دیے، مسجد کے پیچھے تقریباً 100 گز زمین باقی ہے۔ اس مسجد کو، مسجد بنائی کس لیے جاتی بھائی؟ بنائی مسجد اللہ کے عبادت کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے مسجد بنائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ کے گھروں میں اللہ کی عبادت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے گھروں میں اللہ کی عبادت کرنے سے اللہ کے بندوں کو روکے۔ میرے بھائی، ان بھائیوں سے میں کوثر محی الدین صاحب چونکہ کاروان کے ایم ایل اے ہیں، ان کے صدر اسد الدین اویسی صاحب، اور وہ تمام بھائی جو آج مسجد کو آباد کرنے گئے اور اس کے لیے اریسٹنگ دینا پڑا، اس کے لیے کافی مشقتیں آپ لوگوں نے بھی جھیلی۔ اللہ ہم کو آپ کو استقامت عطا فرمائے سچائی پہ۔ تو اس مسجد کے لیے جو چندہ صاحب مسجد ہے، ایک صرف مغرب کی دیوار بچی ہوئی ہے، یاد رکھیے۔ میں اور بھی مزید ان کے بیانات بھی ہے، یہ صرف بتا دے رہا ہوں، یہ اعتماد میں انہوں نے چھاپا تھا، بس میں تفصیلات بعد میں بتاؤں گا۔ میں ان کا ذاتی دشمن نہیں ہوں، میں ان کا نام بھی لینا نہیں چاہ رہا ہوں، لیکن اللہ کے لیے میں جناب اسد الدین اویسی سے گزارش کر رہا ہوں کہ اللہ کے لیے یہ مسجد کو آباد کر دیجئے۔ اس میں کوئی دوسرا آدمی یہاں پہ رکانے والا نہیں ہے، یاد رکھیے میرے بھائیوں۔ میں ان بھائیوں کو جو مخلص ہے اللہ کے لیے، جماعت میں جو شامل ہیں، میں جو اپیل کیا کہ آج میں آپ سے آ کر خصوصی طور پر آپ سے ایک میسج دوں گا، آپ تک ایک گزارش آپ تک میں پہنچاؤں گا۔ یہ گزارش یہ ہے میرے بھائیوں، وہاں جا کے آپ لوگ شمس آباد میں نماز پڑھے، بہت اچھی بات ہے۔ آپ کے لیے کتنے مشکلیں آئیں، کتنے آپ لوگ جا کے آپ بھی کمشنر شمس آباد میونسپل کمشنر کے پاس بھی گئے، آپ لوگ بھی، آپ کے ساتھ کارپوریٹرز گئے، اور پرسوں ہم بھی دھرنا دیے، اس کے بعد آپ بھی دھرنا دیے، ہم بھی اریسٹنگ دیے، آپ بھی اریسٹنگ دیے۔ یہ اریسٹنگ کی یا کسی تنازع کی بات ہی نہیں ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ میں وہ بھائی سے بھی گزارش کر رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے گھر کو آباد کر دیجئے۔ یہ ذاتی تنازع نہیں ہے۔ دیکھیے، میں میری جان بھی دے دینے کے لیے تیار ہوں اس کے لیے، یاد رکھیے، میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ انشاءاللہ تعالی ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اللہ میرے قدموں کو جما دے حق پہ۔ میں اللہ کے لیے، میں ان بھائیوں سے جو اخلاص کے ساتھ اللہ کے گھر کو آباد کیے، آپ کے صدر صاحب سے التجا کیجئے اللہ کے گھر کے واسطے،
मैं भी गुजारिश कर रहा हूं, अल्लाह के लिए अगर मैं छोटा हो जाऊं तो मेरे लिए कोई माने नहीं है। अल्लाह का मैं बंदा हूं, उनको भी उनके बकौल मिट्टी की ग़िज़ा बन जाना है, मेरे को भी मिट्टी में चले जाना है। अल्लाह आलम हमारा हाल क्या होगा, लेकिन अल्लाह के लिए जब हम अगर कोई बात अल्लाह के लिए करेंगे, अल्लाह की रज़ा के लिए करेंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी के लिए करेंगे, अल्लाह ज़रूर हमारी इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिशों को, हमारे नियतों को अल्लाह कबूल करेगा। मैं भाइयों से गुजारिश कर रहा हूँ, जमात के मेरे मुखलिस भाइयों से, कि अल्लाह के लिए, अल्लाह के इस घर को, एक सिर्फ दीवार बची हुई है, याद रखिए एक दीवार बची हुई है सिर्फ इसकी, ये दीवार को अल्लाह ताला के लिए बचा लीजिए। याद रखिए ये बार बार ये मेरे घर की नहीं है, ये सर्वे रिपोर्ट के, ये जो वक्फ बोर्ड का है ये नक्शा सारा आप भी निकाल ले सकते, गजेट निकाल सकते, सर्वे रिपोर्ट निकाल सकते, इसका प्लान निकाल सकते, सारे चीजें इसकी 1913 में लियोनार्ड मन ने जो नक्शा बनाया था पूरे हैदराबाद का, सर्वे किए थे, वो भी 1913 में भी वो मस्जिद बताई जा रही है मेरे भाई। मेरी गुजारिश है आप लोग भी मेरी बात, असदुद्दीन ओवैसी साहब भी शायद देख रहे होंगे या सुन रहे होंगे, या आपके तवज्जो से उन तक मेरी बात को पहुंचा दीजिए। अल्लाह के लिए अल्लाह के घर को आबाद कीजिए। और ये बात भी याद रखिए, मैं गुजारिश कर रहा हूं, मैं शिकस्त नहीं खाया और कभी भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह मेरे को तोड़ेगा नहीं। 2006 से मैं मुसलसिल बरसर पैकार हूं, 2006 से मुसलसिल कानूनी लड़ाई लड़ रहा हूं। कई बार कोशिश की है, जो भी हुआ मैं उसको सब, मेरे कोई नहीं है, अल्लाह के घर को आबाद कीजिए। मैं अनानियत मत कीजिए कोई भी, मैं गुजारिश कर रहा हूं भाइयों से, मेरा कुछ भी नहीं है, अल्लाह के लिए है मेरे भाई। मेरी जान, मेरी औलाद सबको जला दीजिए आप, कोई बात नहीं है, हम जल जाएंगे, टुकड़े टुकड़े कर दीजिए हमारे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम मर जाएंगे हमारे अल्लाह के घर के लिए। वो अगर 50 गज 100 गज जो भी, पैसे भी मत दीजिए सदर साहब, मेरा घर, मेरी जो भी चीज़ है मैं बेच के अल्लाह के घर को बना लेता हूँ। आप सिर्फ परमिशन दे दीजिए। वक्फ बोर्ड भी आपके हाथ में है, वक्फ बोर्ड के आप मेंबर है, वक्फ बोर्ड में आपके मेंबर्स है, कौसर मुहिउद्दीन साहब मेंबर है, अकबर निजामुद्दीन साहब मेंबर है। भाई अल्लाह के लिए मेरे को वो मस्जिद का परमिशन दे दीजिए, आप कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं कई जगह केसेस डाला, क्रिमिनल केसेस बुक कराया, आपके सरपरस्ती में केसेस मालूम हुआ क्या है, क्लोज करा लिए। भाई मैं क्या करूं, मैं कानून जहां तक है मैं लड़ता रहूंगा, ऐसा नहीं है, मैं ये छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं मर जाऊंगा, लेकिन अल्लाह के घर को आबाद करने के लिए मेरे ये घर है, ये घर भी चलेगा, मेरे को परवाह नहीं है, लेकिन अल्लाह के घर के लिए मैं कोई ये बात जज्बात में नहीं बोल रहा हूँ, सोच समझ के सारी चीजें, मैं हर चीज का अंजाम सोच के भी, कि अल्लाह जो भी कर रहा हूं, अल्लाह तू बेहतर समझता, मेरी इस जद्दोजहद में अगर मेरी मौत भी हो जाए, मेरे को कोई इंशाअल्लाह उस मौत से अच्छी मौत कोई नहीं है। मैं किसी को तकरीब नहीं कर रहा हूँ, किसी को तशद्दुद की तरफ उभार रहा हूँ, नहीं उकसा रहा हूँ, मैं अल्लाह के घर को आबाद करने के लिए इल्तिजा कर रहा हूँ। मैं असदुद्दीन ओवैसी से उनसे गुजारिश कर रहा हूँ अल्लाह के लिए, मैं कई मरतबा मैं बोलता हूँ, आपको मालूम है कितने मरतबा आपको मैसेज किया, अल्लाह के घर को आबाद कर लीजिए। रमजान में मैंने मैसेज किया, कितने मैसेज किया, एक अल्लाह के घर को आबाद करेंगे तो 700 घरों के अल्लाह ताला, क्योंकि एक नेकी करेंगे रमजान में तो 700 नेकियों का सवाब है, एक अल्लाह के घर को आबाद कर लो। मैं आपको कितने मैसेजेस किया, मैं ये डर के नहीं बोल रहा हूँ, अल्लाह जानता ये बात, अल्लाह, मैं सिर्फ इस्लाह के लिए मैं इंतजार कर रहा था, मैं खुद भी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला जो मैं सोचा अल्लाह उसके मुताबिक फैसला हुआ, मस्जिद आबाद हो गई, पुरअमन तरीके से आबाद हो गई। वो बाद में बात करेंगे उन लोगों के ऊपर, क्या केसेस बुक करना, क्यों नहीं बुक किया गया, वो बाद में बात करेंगे, छोड़ेंगे नहीं वो। लेकिन ये मस्जिद जो अपने कारपोरेटर के मना किया, याद रखिए, उनसे पूछ लीजिए मैं झूठ बोल रहा हूं क्या,
हमारे साथियां जब गए नमाज पढ़ने, गला पकड़ के निकाल दिया उन्होंने वहां से, रट्टा पकड़ के निकाल दिए वहां से, जाइए काले मुल्ला की मस्जिद में आबाद नमाज पढ़ो बोल के। भाई मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं, उनका दुश्मन नहीं हूं मैं, उनके अब्बा मेरे को बहुत चाहते थे, मैं आज भी उनकी मगफिरत के लिए दुआ करता हूं, बहुत मेरे को अजीज रखते थे, मैं उनको अजीज रखता था। इख्तिलाफ कोई भी शख्सी नहीं है, कोई शख्सी इख्तिलाफ नहीं है। अल्लाह के लिए मेरी बात को मान लीजिए, मेरी बात को मुझे मजीद आगे बढ़ने से रोकिए अल्लाह के वास्ते। मैं ये रुकने वाला नहीं हूं, याद रखिए, मैं नहीं रुकूंगा जब तक कि मेरी मौत ना हो जाए, मैं रुकने वाला नहीं हूं। मैं ये लड़ते लड़ते ये कानूनी लड़ाई ये इंशाअल्लाह जीत जाऊंगा, या तो फिर जो भी अल्लाह ताला मेरे लिए मंजूर रखा मैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से अगर मेरे लिए मौत आए, मैं उसके लिए इंशाअल्लाह ताला मैं उस चीज़ के लिए मैं तैयार हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मैं गुजारिश कर रहा हूँ मैं सदर साहब से उनके कि अल्लाह के लिए अल्लाह के घर को आबाद करे, अल्लाह के घर को आबाद कर दीजिए, और उनको बोल दीजिए अगर यहाँ नहीं रुकेंगे, यहाँ नहीं कर देंगे, अभी टाइम है इसलिए बोल रहा हूँ मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, ये वक्त है, अल्लाह के लिए मान लीजिए, वरना ये मूवमेंट वहाँ जो समझ रहे हैं कि ख़त्म हुआ शमशाबाद में, वहाँ ख़त्म नहीं हुआ। अब ये मेरी बात को तमाम वो लोग भी जो मस्जिदों से मोहब्बत करते, वो लोग भी सुन रहे हैं, वो लोग भी देख रहे हैं, उन लोगों को भी नहीं मालूम था। वो भाई भी जो अल्लाह के घरों से मोहब्बत रखते हैं मजलिस में रहते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी देख रहे हैं मेरी बात को। खुसूसी तौर पर उन्हीं के लिए मैं ये गुजारिश करने के लिए आया हूँ। ये लड़ाई ये रुकेंगी नहीं, फिर ये बढ़ जाएंगी, अल्लाह के लिए मैं नहीं करना चाह रहा हूँ। और भी याद रखिए ये चीज़, ये अभी भी ये वक्त है कि अल्लाह के घर को आबाद करने के लिए परमिशन दे दीजिए। कौसर मोहिउद्दीन साहब को बोल दीजिए, आपके कारपोरेटर साहब को बोल दीजिए कि चलो मियाँ अल्लाह के घर को आबाद कर दो, इससे पहले कि हाथ से निकल ना जाए। और ये ख़त्म नहीं होगा, ये बहुत बड़ा आप लोगों के लिए एक मसला पैदा हो जाएगा। और वो बस इसको अल्लाह के लिए, इसको मज़ीद तवालत होने से ये मसले को और कोई दूसरा अल्लाह ना खास्ता अल्लाह रहम फरमाए हर दो को नुकसान ना हो। मैं मेरी तरफ से किसी को नुकसान नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे को गोली मार दो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अल्लाह के घर के लिए आप शमशाबाद की मस्जिद आबाद करें। वो भाई तमाम जो लोग गए मजलिस के, मैं उन तमाम का सैकड़ों की तादाद में गए, उन लोगों का मशकूर हूँ। अगर नहीं करेंगे तो मैं काल दे सकता हूँ, चलो मस्जिद चंदा साहब बोल के। अल्लाह के वास्ते ये मत होने दीजिए। और उसके बाद जो भी हालात होंगे, अब वो उस्मान भी नहीं है, आप समझते हैं, आपको भी अंदाजा है, अब वो उस्मान नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह एक वक्त था गुस्सा ज्यादा रहता था, अब जो भी है गुस्सा अपनी जगह है, लेकिन अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह उसके फजल करम से फिरासत भी, अल्लाह ताला उस लियाकत जो भी अल्लाह ताला उससे फजल करम से दे रहा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के लिए इस्तेमाल करता हूँ, कानून के दायरे में रहते हुए। ये बात याद रखिए, कहीं ये ना हो जाए कि चलो मस्जिद चंदा साहब बोल के, उससे पहले अल्लाह के घर को आबाद कर दीजिए। सेकंड एपिसोड अगर नहीं समझ रहे तो बहुत जल्द आपके सामने एक ऐसा खतरनाक चौंका देने वाला एक ऐसा वाकया लाऊंगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी भी वक्त है, उसको मत यहीं ख़त्म कर दीजिए मसले को। दूसरी तरफ जाएंगे तो बहुत बड़ा मसला है। और एक अल्लाह के लिए मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, अल्लाह के घरों के वास्ते मैं इल्तिजा कर रहा हूँ। अल्लाह के घरों को आबाद रखने के लिए मेरी गुजारिश को कबूल कर लीजिए। असदुद्दीन ओवैसी साहब, कौसर मोहिउद्दीन साहब, उनके साथ जितने कारपोरेटर्स गए हैं उन तमाम से मेरी इल्तिजा है, उन तमाम भाइयों से जो सरगर्म कारकुनान हैं जो अल्लाह के घर को आबाद करने गए, मस्जिद चंदा साहब के पास भी आइए, उसको आबाद कर दीजिए। अल्लाह मुझसे आपसे राज़ी हो जाए। याद रखिए मेरी बात का अगर वो कबूल कर लेंगे तो मेरे लिए भी सवाब है, उनके लिए भी सवाब है। अगर वो कबूल नहीं करेंगे मेरे को तो अल्लाह तो सवाब देगा ही देगा, उनके लिए अल्लाह ताला की पकड़ हो जाएंगी। इसलिए कोई ऐसी बात ना होने दें जिससे हमारे दरमियान इख्तिलाफात बढ़े। हमको अल्लाह ताला इससे बचाए। आप सब जानते हैं, मेरे अपने लोग भी, हमारे आसपास के अतराफ के लोग भी, सभी ये चाहते हैं कि वो मस्जिद आबाद हो।
हर कोई बोल नहीं सक रहा, डर है, खौफ है क्या कुछ हो जाए, मेरे को क्या कर सकते कर लो, वो घर के लिए अल्लाह के लिए मैं तैयार हूं। और ये अगर बात कबूल नहीं होंगी तो मैं बसद्दे एहतराम तमाम का, उन तमाम भाइयों का मैं तो आपसे गुजारिश कर दिया, आप भी गुजारिश कीजिए अपने सदर साहब से, अपने जो जिम्मेदारान हैं उनसे गुजारिश कीजिए कि मस्जिद चंदा साहब को आबाद कर दीजिए, वरना इसके बाद बात हाथ से निकल जाएंगी। इसलिए मैं जो समझ रहा हूँ, जो मुझे मालूमात है, जो मुझे इल्म है, वो बात खराब हो जाएंगी। और किसी के लिए, आप लोगों के लिए या किसी के लिए भी मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ। ये बात चूंकि आप भी मस्जिद को आबाद करने से कोई मजलिसी भाई भी इनकार नहीं कर सकता है, मेरा ईमान है अल्लाह के फजल से। मस्जिद को आबाद मालूम रखते हुए, अब चूंकि मालूम हुआ गजट है, सर्वे रिपोर्ट है, तमाम कोर्ट का आर्डर है, उसके बावजूद भी क्यों रुक रहे होंगे, मैं कुछ नहीं बोल सकता भाई। शाहिद अली खान साहब, मैं कुछ भी नहीं बोल सकता उन्होंने क्यों रुक रहे होंगे। असद ओवैसी साहब, वो उनसे पूछिए। मैं उनके कारकुनों के जरिए से मैं आप तमाम भाइयों से गुजारिश कर रहा हूं कि आप उन तक ये पैगाम को पहुंचाइए। मस्जिद है, आप वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं, कौसर मुहिउद्दीन साहब मेंबर हैं, अकबर निजामुद्दीन साहब मेंबर है, जेड जावेद साहब मेंबर है, उनके पास वक्फ बोर्ड का तमाम चीजें रिकॉर्ड है। मेरे घर से छपा हुआ रिकॉर्ड नहीं है। अल्लाह के वास्ते उस मस्जिद को आबाद करने के लिए आप तमाम से भी, मजलिस में जो काम करने वाले उन भाइयों से मेरी गुजारिश है, मेरी इल्तिजा को अपने सदर साहब तक पहुंचाइए और मस्जिद को आबाद करके दुनिया और आखिरत में आप भी हम भी कामयाब हो जाएं और तनाज़े को आगे ना बढ़ने दें। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंतज़ार में था, इसलिए परसों अरेस्टिंग भी इसलिए पहल मैं ही करा कि आप भी अरेस्ट हों, मैं भी अरेस्ट हूँ, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के घर के वास्ते। और अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत को भी इतना प्रेशर हो गया, अवाम के साथ कई लोगों ने भी अरेस्टिंग दी, हमारे भाइयों ने, सब तंजीमों के लोगों ने। मैं तमाम का भी मशकूर हूँ। और वो भाई जो मुझे देख रहे हैं अपना कीमती वक्त निकाल कर मेरी गुजारिश को, मेरी इल्तिजा को अपने सदर मुहतरम तक पहुँचा दें और अल्लाह के घर को आबाद कर दें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिर मैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द, अगर मेरी बात नहीं सुनी गई तो फिर इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपके सामने एक बहुत बड़ा खुलासा लेकर हाजिर होऊंगा। उसका खुमियाजा बड़ों तक आ जाएगा, बड़ों तक बात आ जाएंगी। वो नहीं चाहता मैं, वो सबूत है मेरे पास है। अल्लाह के वास्ते मैं ब्लैक मेलिंग नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह के घर के लिए बात कर रहा हूँ। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।